morning, dear children. Today in EVS, we will be continuing lesson number 18, Water from Different Places. Hello and a very good morning to all my dear students. Today in the environment we will be continuing lesson number 18. First of all, a very good morning and hope you all are fine and safe at home. Today we'll continue lesson number 18, that is your water from different places. Now in this lesson we have already studied about from where do we get the water from. We get the water from ponds, rivers, lakes. Then rain is the main source of water. Now sometimes the water that comes to our house gets dirty because of the many reasons. One may be because the sewage water might get mixed with that water, or because of the rain the water is dirty water comes to the and it is not filtered, or the polluted water, the water gets polluted in the rivers or ponds or lakes because of the factory wastages that are disposed of in that. So there are many reasons. In this lesson we first started with a girl cripple. There was a guest at her place and the father told that because water is not fit to be consumed, so you better take a cold drink. We have no choice, we are drinking that water. Now there are different ways to purify the water. Like first is the boiling of water. Boiling of water is the most effective way to make the water germ free and consumable. That means we can use that water for drinking purposes. The other methods are filtration. Only filtration is there, then boiling and filtration is there, then sedimentation is there, then many things are added into the water, like potassium permanganate is added to make the water clean. Then is the alum जिसको कि हम फिटकरी भी बोलते हैं, उसको पानी में ऐड किया जाता है। इसलिए जितनी भी जो उसके अंदर धूल मिट्टी पानी में जो होती है वो सारी नीचे सेटल हो जाती है और ऊपर क्लीन वाटर रहता है। एंड दिस इज़ एट मेनी टाइम्स यूज्ड एट होम्स ऑल्सो। हम लोग घर में भी बहुत बार इस चीज़ को यूज़ करते हैं अपने पानी को क्लीन करने के लिए। Then we talked about the water games, that how much of water is used in this. So there's a lot of disparity in this, that there are many villagers who don't get even the water to drink, and there are many water parks are there where lot of water is wasted just for the sake of the entertainment and fun. So it should not be there. Now we'll start our work from page number 141. The topic is कैन वी ड्रिंक दिस, मतलब क्या हम ये पानी पी सकते हैं. दिस इज एलिस ब्रिज, अहमदाबाद. The lift stopped at the 20th floor. Smith loves going in the lift. Today is holiday in school. Smith had gone with his mother to Anju madam's house. His mother worked there. अब यहाँ पर एक स्टोरी है स्मिथ नाम के एक लड़के की, जो अपनी मम्मी के साथ एक दिन जो है 20th फ्लोर पे उस अंजू मैडम के घर गया, जहाँ उसकी मम्मी काम कर रही थी. छुट्टी का दिन था, स्कूल नहीं जाना था, इसलिए वो अपनी मम्मी के साथ गया. द हाउस वॉज क्वाइट, क्लीन एंड शाइनी. अंजू वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर. अब घर कैसा था, एकदम शांत था, घर में कोई नहीं था और एकदम साफ सुथरा था घर. और अंजू मैडम क्या थी, पेपर पढ़ रही थी. शी स्माइल्ड एट स्मिथ एंड आस्क्ड. उन्होंने स्मिथ की तरफ देखकर हंसते हुए पूछा, इज इट अ हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है क्या. शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड स्मिथ सैट सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द
कार्टून्स। अब उसने स्मिथ को देखा, हंसते हुए पूछा छुट्टी है, तो उसने टीवी चालू किया और स्मिथ वहाँ पर टीवी में कार्टून देखने लगा। एट दैट टाइम अंशु मैडम शाउटेड, ओह छाया, इट इज़ इन द न्यूज़पेपर that the gutter water has got mixed with the drinking water pipes in the area. It says that many people are sick with diarrhea and vomiting because of this. तभी जो थी अंशु मैडम जो पेपर पढ़ रही थी, उसने पेपर में क्या पढ़ा कि पेपर में ऐसा एक न्यूज़ आया है कि जो पानी की जो पाइपलाइन है, हमको हमारे यहाँ जो पानी आता है वो पाइपलाइन से ही आता है। तो जो पानी की पाइपलाइन है उसके अंदर गटर का पानी जो है मिक्स हो गया बिकॉज ऑफ समवेयर लीकेज ऑफ द पाइपलाइंस, द वाटर हैज़ गॉट मिक्सड। और उस पानी को पीने से इस एरिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार पड़ गए हैं, उनको डायरिया और वॉमिटिंग हो गया है। तो ये गंदा पानी पीने से इस तरीके से लोग बीमार पड़ जाते हैं। प्लीज़ थ्रो अवे द वाटर दैट इज़ फिल्ड येस्टरडे। तो उन्होंने क्या बोला, स्मिथ की मम्मी का नाम क्या था, छाया था। तो उन्होंने क्या बोला कि सारा पानी जो है फेंक दो जो कल हमने भरा था। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल, और जो है नया पानी जो है, ताज़ा पानी लेकर उसको बॉयल करने के लिए रख दो फॉर ड्रिंकिंग, मतलब पीने के लिए जो है पानी उबाल लो। ऑल्सो टेक सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली, और अपने फैमिली के लिए भी कुछ पानी यहाँ से बॉयल किया हुआ ले जाना। Smith was happy to hear this. I thought at least I will not have to stand in queue for water. It is a real holiday for me. तो स्मिथ बहुत खुश हो गया कि आज यहाँ से पानी ले जा रहे हैं, तो मेरे को आज घर पे पानी भरने के लिए लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ेगा। आज रियली ही मेरी छुट्टी रहेगी, आज मैं पूरे दिन मज़े कर सकता हूँ। यू कैन सी दिस इज़ अंशु मैडम, दिस इज़ स्मिथ एंड दिस इज़ छाया। क्यों उन्होंने क्या बोला था न्यूज़पेपर में पढ़ के कि सारा पानी जो है मिक्स हो गया है, इसलिए सारा पानी फेंक दो। सो डियर चिल्ड्रन, द रीज़न फॉर, सो यू कैन सी दिस हियर, द रीज़न इज गिवन वाई द वाटर गेट पोल्यूटेड इज बिकॉज ऑफ द gutter water or the sewage water has mixed with the water pipelines, and that is why that water has mixed with the drinking water and the water has become dirty which is not fit to be used. इसलिए उस पानी को, अगर जो नल में पानी आता है सब मिक्स है, हमको पता है अगर गंदा पानी आता है नल में और वो पानी जो है पीने लायक नहीं है, तो हमको उसको क्या करना चाहिए, पहले क्लीन और जर्म फ्री करना चाहिए। और उसका सबसे बेस्ट मेथड है दैट इज़ बॉइलिंग ऑफ वाटर। इफ़ यू बॉयल द वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, तो उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब मर जाएंगे और पानी एकदम क्लीन और पीने लायक हो जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी ऐसा हो बारिश के सीज़न में, खास करके जो पानी गंदा आता है, तो पानी को जो है उबाल करके ही पीना चाहिए। चिल्ड्रन, यू केम टू नो दैट द वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन एंड देन यूजिंग, एज आई टोल्ड यू, पोटेशियम परमैंगनेट और alum also to clean the water. So by drinking the dirty or the contaminated water, many diseases are caused, and mainly the stomach diseases are caused when we drink that dirty water. Mainly diarrhea है, वॉमिटिंग है, जॉइंटिस है, टाइफॉइड है, कॉलेरा है, ये सारी चीज़ें जो है गंदा पानी पीने से होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब बारिश की सीज़न होती है तब ज़्यादा ऐसा होता है कि पानी गंदा आता है, तब हमको उसको उबाल के और छान के फिर ही पानी पीना चाहिए, जिससे हमको कोई भी बीमारी ना हो। Now on page number 141 are there certain questions that we will study in, do it in the notebook only directly. Why was Anju worried when she read about in the newspaper? She was worried because the gutter water has mixed with the water pipeline. So Anju asked that all the water that was filled on the previous day should be thrown. Could this water have been used for something? Yes, this water could have been used in the toilet or for watering in the, you can use that to water the plants in the garden, and anything you can use in, or to wash your bathrooms, all that you can use that. In what way did she plan to clean the water? What way she plan to clean the water? She planned to clean the water by boiling it. Now on page number 142 is, do you know of the different ways to clean the water? Now describe them. The different ways of cleaning the water, I've already explained it to you. Now next one is, suppose Anju had not read the newspaper and everyone drank that water without boiling it, then what would have happened? They would have fallen sick by drinking that dirty water. Now discuss, when Smith leaves, everyone has to stand in queue to fill the water from the
common public tap. In Anshu's house, water comes all day in the tap. Why? Now see, Anshu lives in a flat where there is a big, huge tank, which is an overhead tank in the terrace. But where so that water tank is always daily filled with the water when the water comes through the pipelines that are connected to the overhead tank from the tap, that from where the water comes, municipality water comes. But where the Smith lives, they have to, there's only one common tap for all to take the water, so everybody has to stand in queue, and that time the water also comes for the limited period of time, so they all have to stand in queue before the water comes so that they can get the water for the whole day. They have to stand in line and fill the water for the whole day because they have only one common tap in the area. So that is the difference, because they are living in a good locality where the water comes in the municipality taps, and then this water is filled in the overhead tanks, so they get water throughout the day. Anju reads newspaper about water in the newspaper. Have you read any such? Have you read any news about water in the newspaper? What kind of news? Yes, many a times such type of news also comes in our newspaper, and when there's there's a breakdown of the pipelines that are supplying water, or many a times we don't know even that the water somewhere gets inside deep. बहुत बार जो होता है पानी की पाइपलाइन जो है अंदर ही अंदर जो है पानी आपस में मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी जो है गटर की लाइन और पानी की लाइन पास पास से होती है, तो बहुत बार अंदर अंदर ही पानी उसमें मिक्स हो जाता है कहीं भी लीकेज होने की वजह से। तो ऐसे न्यूज़ तो रेगुलरली आते ही रहते हैं पेपर में ना। यहाँ पर आपको ये जो है लेट्स मेक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। जब भी किसी को डायरिया वॉमिटिंग होता है तो क्या पीना चाहिए? हमारे बॉडी के अंदर से जो होता है पानी कम हो जाता है, मिनरल्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया और वॉमिटिंग? हाउ डिड यू फील? When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body. This is very dangerous for body. It is important that we make up for the water that we have lost from our body. We should drink a lot of water when this happens. We should also mix some sugar and salt in the diarrhea and vomiting, because there's a loss of water in our body. जब वॉमिट होती है तो भी हमारे बॉडी के अंदर से पानी निकलता है, सब मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, और वो जो पानी भी होता है कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द डिहाइड्रेशन, मतलब कि जो पानी का बॉडी के अंदर कम होना, विच इज़ कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। तो हमको ये लॉस जो है पानी का वो हमको पूरा करना पड़ता है, और वो हम कैसे पूरा करेंगे? ज़्यादा पानी पीकर, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अप दिस लॉस, अदरवाइज हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर आवर हेल्थ। तो हम जो है पानी पियेंगे, उस पानी के अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर ऐड करके अगर हम वो पानी पीते हैं तो हमको एनर्जी भी रहेगी, और जो मिनरल्स लॉस हो गए हैं पानी में, मीन्स डायरिया और वॉमिटिंग में, वो भी धीरे धीरे हम गेन करने लगेंगे। इसलिए जो बॉडी है हमारे बॉडी को उतना वीकनेस पता नहीं लगेगी, अदरवाइज योर बॉडी विल फील वेरी वेरी वीक। नाउ हियर द मेथड इज गिवन, लेट्स मेक अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। हमको शुगर और सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बनाना है। मिक्स 1 टीस्पून ऑफ शुगर एंड अ पिंच of salt in a glass of a boiled water and cool it. और जब भी वॉमिटिंग और डायरिया हुआ हो तब हमेशा यू रिमेंबर दैट यू शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, डोंट ड्रिंक द रेगुलर वाटर, बिकॉज दैट रेगुलर वाटर may contain some impurities, some germs might be there which may aggravate the situation, which may make your situation worse. So it is better that when you are having diarrhea or vomiting, when you're suffering from that, always drink the boiled water, and in that boiled water only you have to add a pinch मतलब चुटकी भर नमक, और एक ग्लास के अंदर 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच जो है चीनी, शुगर आपको ऐड करके अच्छे से मिक्स करके उसको कूल करना है। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच ऑफ सॉल्ट, और टेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं होना चाहिए, उतना ही नमक होना चाहिए जितना कि आप पी सकते हैं उसके टेस्ट में। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर
टीयर्स, मतलब पानी बहुत ज़्यादा जो है वो सॉल्टी नहीं होना चाहिए, मतलब नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मेजर ऐसे होनी चाहिए कि हम उसको आसानी से पी सकें। हमको सॉल्टी लगना चाहिए पानी, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं लगना चाहिए। सॉल्ट का टेस्ट आना चाहिए, लेकिन ओवर सॉल्ट का टेस्ट नहीं होना चाहिए। वैसा हमको पानी बनाना है, इसलिए 1 ग्लास में अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर आपको ऐड करके एक पानी बनाना है। और फ्रीक्वेंटली जब भी आपको प्यास लगे तब आप यही पानी पीजिए, तो आपका जो वाटर लॉस है बॉडी में वो भी रिटेन हो जाएगा, और उसके साथ जो आपको वीकनेस है या आपके बॉडी में जो मिनरल्स कम हो गए हैं वो भी धीमे धीमे वो भी गेन करने लगेंगे। नाउ when a person has diarrhea or vomiting, the water must be sipped slowly। और जब भी किसी को डायरिया या वॉमिटिंग होता है तो पानी एक साथ जो है, एक सांस में पूरा पानी, एक घुट में पूरा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी को धीमे धीमे है सिप बाय सिप करके पीना चाहिए। बाय हिम और हर लाइट फूड मस्ट बी टेकन विथ इट। और उसके साथ कैसा खाना खाना चाहिए? लाइट फूड खाना चाहिए। लाइट फूड मीन्स द फूड विच कैन बी डाइजेस्टेड वेरी इजीली, दैट इज़ नॉट हैवी फॉर योर स्टमक। और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी जो है, आपके इंटेस्टाइन्स के लिए भी वो जो इजी रहे, जिसमें कि आप हल्का रहे और आसानी से डाइजेस्ट कर सके, वैसा फूड आपको खाना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा हेवी फूड नहीं खाना चाहिए। Babies should continue to take their mother's milk. It is also necessary to take some medicines. They can also have some homemade medicines. If the diarrhea does not stop, it is important to get a एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। अब जो छोटे बच्चे हैं उनको घर की होम रेमेडीज़ आप दे सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी डायरिया स्टॉप नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर ही दवाई लेना बेटर है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब छोटे बच्चों को होममेड रेमेडीज़ में बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़ होते हैं जो होममेड होते हैं और उससे बच्चों को जल्दी असर हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो इट्स बेटर दैट यू कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर एंड गेट द मेडिसिन फ्रॉम द डॉक्टर टू स्टॉप द डायरिया, बिकॉज टू लॉन्ग इफ द डायरिया एक्सिस्ट देन इट इज़ फेटल फॉर अस, मतलब वो हमारे लिए बहुत ही, हमारे हेल्थ को नुकसान करता है। नाउ वाटर सर्वे इन स्कूल। अब स्कूल्स के अंदर जो होता है वाटर, पानी की तो ज़रूरत पड़ती ही है, तो ये वाटर सर्वे है स्कूल के अंदर का। मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑफ योर क्लास। 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इन द स्कूल। एक ग्रुप जो है ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करेगा। द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट। सेकेंड ग्रुप विल सी द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट एंड थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट द इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द स्कूल। मतलब तीसरा ग्रुप ये फाइंड आउट करेगा कि कौन कौन सी इलनेस जो है बच्चों में होती है। नाउ ये हमको अभी करना नहीं है, ये ऑब्जर्व एंड नोट है, हम खाली यहाँ से करते हैं। पुट द राइट इन द टिक राइट टिक इन द राइट बॉक्स। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर स्कूल। हमारे स्कूल में पानी कहाँ से आता है? टैप में से, टैंक में से, हैंडपम्प से या अदर से। हमारे यहाँ स्कूल में पानी जो है टैप में से आता है। जो टैंक ऊपर भरा हुआ होता है, ओवरहेड टैंक, द टैप इज कनेक्टेड टू दैट ओवरहेड टैंक एंड फ्रॉम देयर द वाटर कम्स इन द school. From where do you take water to drink in your school? टैप, टैंक, हैंडपम्प और अदर। हम टैप से पानी लेते हैं। इफ़ देयर वॉज नो टैप और मटका, अर्थन पॉट और हैंडपम्प, देन हाउ डू यू गेट द वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। अगर कोई टैप नहीं होता, कोई मटका मतलब कि अर्थन पॉट नहीं होता या हैंडपम्प नहीं होता, पानी का पीने का पानी कहाँ से लेंगे? वी विल गेट द वाटर फ्रॉम द टैंकर। वाटर टैंकर में से हम पानी लेंगे। फिर जो टैंकर्स आते हैं, अगर पानी नहीं आता है टैप में तो टैंकर्स आते हैं, उस टैंकर्स में से हम पानी लेंगे। इफ़ देयर इज़ वाटर इन ऑल द, इज देयर इज़ वाटर इन टैप ऑल द टैप्स एंड और हैंडपम्प्स, मतलब जितने की टैप्स लगे हुए हैं सब टैप में पानी आता है आपके स्कूल में? येस इट कम्स। Moving on to page number 144. What will you do if any tap is leaking or dripping? अगर आपके स्कूल में कोई टैप है या आपके घर में भी कोई टैप है जो लीक कर रहा है या जिसमें से कंटिन्यूसली पानी ड्रिप हो रहा है, टपक रहा है, तो आप क्या करेंगे? अगर वो लीक कर रहा है तो हम उसको जो है, वो स्कूल में है तो हम टीचर का अटेंशन ड्रॉ करके टीचर को बोलेंगे कि ये टैप रिपेयर करवा लीजिए, और घर में है तो हम रिपेयर करवाएंगे। Are all the matkas or the earthen pots filled with water, and are they
कवर्ड। जितने भी मटके हैं पानी के, अगर स्कूल में या घर में आप भरते हैं तो वो पानी से भरे रहते हैं और उनको कवर करते हैं। येस, ऑल आर कवर्ड। आर द मटकास, earthen pots and other water containers cleaned regularly? Yes, the matkas and other water containers are cleaned regularly. मतलब कि जो भी पानी भरने के जितने भी बर्तन हैं, मटका है या किसी जो भी बर्तन में आप पानी भरते हैं उसको आप रेगुलरली क्लीन करते हैं और पीने का पानी भरते हैं। और वैसे भी पानी अगर आप भरते हैं, पीने का हो या यूज़ करने के लिए हो, जिस भी बर्तन में आप पानी भरते हैं उसको आपको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें गंदा पानी ऐड होता रहेगा और वो पानी, जो नया पानी आप ऐड करेंगे, अच्छा पानी ऐड करेंगे, वो भी गंदा हो जाएगा, क्योंकि स्लोली ऑल द डर्ट एंड द जर्म्स विल स्टार्ट कलेक्टिंग इन दैट वाटर। सब पानी मिक्स होता जाएगा तो वो ज़्यादा ही गंदा हो जाएगा। इस वजह से उसको क्लीन करना ही चाहिए रेगुलरली। हाउ इज़ द वाटर मेड सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग? वाटर को हम सेफ़ ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ कैसे बना सकते हैं? वाटर इज़ मेड सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग बाय अ वाटर प्यूरीफायर। जो वाटर प्यूरीफायर होते हैं, आजकल लोग बॉयल नहीं करते हैं, लेकिन आजकल देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ वाटर प्यूरीफायर अवेलेबल इन द मार्केट। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूज दैट वाटर प्यूरीफायर टू क्लीन द वाटर. So we also in the school have a water purifier to clean the water. What would happen if the water is taken without ladle from the matka or any other वेसल? अगर हम पानी को जो है मटके में से या किसी अदर कोई भी अदर वेसल या यूटेंसिल में से लेते हैं तो हमको एक जो है लैडल, मतलब कि जो बड़ा सा एक पानी भरने के लिए या पानी निकालने के लिए जो बड़ा सा स्पून आता है, उससे हमको निकालना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि अगर हम उससे नहीं निकालेंगे और अगर हम अपना हाथ डालेंगे पानी के अंदर तो हमारे हाथ हमेशा तो क्लीन नहीं रहते हैं। ऑल द टाइम वी डोंट वॉश एंड क्लीन आवर हैंड व्हेन वी टेक वाटर। तो जो हाथ में जो हमारे गंदगी होगी, हमारे हाथ के अंदर जो हमारे नाखून में वो जो भी गंदगी होगी, वो हमारा हाथ जो पानी के अंदर जाएगा तो उसके अंदर वो मिक्स हो जाएगी। सो ऑल द germs and the impurities that are and the dust that is present in our hand, that will get mixed in the water of that utensil which we have to drink. और अगर वो पानी हम पिएंगे then we will definitely fall sick. Is the place around the drinking water taps or मटका और earthen pots clean regularly? जो पानी water place है आपका वो हमेशा clean होता है कि नहीं? Yes, the place around the drinking water taps is clean regularly. Now this is your discuss and find out that we are not going to do. Moving on to page number 145 now. Observe and write, put tick in the box. What are the toilet arrangements in your school? Built toilet या open toilet? हमारे स्कूल में कैसे टॉयलेट है? built toilet है. How many toilets are there? 4 toilets are there. Are there any separate toilets for boys and girls? Yes, separate toilets are there for boys and girls. Is there water in the toilet? Yes. Where does the water come from? The tap. From tank? Yes. And has to be brought by home? No. पानी कहाँ से आता है? टैप में से आता है, टैंक में से भी आता है, और लेकिन पानी को हम घर से नहीं लाते हैं. Is there water for washing hands near the toilet? Yes. Do you wash your hands after using the toilet? Yes. Is there any tap that is leaking or dripping? No. आपके स्कूल में कोई लीकेज वाला टैप है या जिसमें से पानी टपकता है, ऐसा टैप है? नहीं. Are all the toilets kept clean? Yes. यहाँ पर जो है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स लिखना है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू राइट. On page number 146 now, how many toilets are there for boys and girls? 3 for boys and 3 for girls and 2 for boys. If there are no taps, who brings water for the toilet, and where does the water comes from? तो all the toilets have tap. हमारे यहाँ तो सारे toilets में tap है ये, and that tap is connected to the overhead tank on the roof, so water comes from there. अगर पानी नहीं है तो हमारे यहाँ जो मेड रखी हुई है उसको क्लीन करने के लिए she brings the water in the toilet. Who keeps the place clean? A cleaner or a sweeper keeps the place clean. मतलब जो टॉयलेट है या उसके आसपास के लिए कौन क्लीन करता है? स्वीपर ही क्लीन करता है, या जो क्लीनर एक रखा हुआ है वही क्लीनर या स्वीपर जो है वो प्लेस को क्लीन रखता है. So this is the end of our lesson. This we are not going to do. You have to write how many of children suffered from diarrhea, vomiting, किसको क्या हुआ, ये हमको यहाँ पर नहीं करना है. तो इसके साथ ही हमारा यहाँ लेसन कंप्लीट होता है. बट ऑन पेज नंबर 147 is some short story. This is Elder's Vision. Let us read that. Discuss with your teacher what you have found out
ऑन योर सर्वे, आपका सर्वे का आपने क्या फाइंड आउट किया ये हमको लिखना है, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। हम ये एल्डर्स विजन पढ़ते हैं। दिस इज अ स्टोरी. दिस स्टोरी इज अबाउट 30 years ago in Rajsamdalia village of Rajkot. The problem of water was raised. The sarpanch of the village वॉज अ मैन विथ अ डीप इंसाइट एंड विजन. तो ये एक 30 ईयर्स की पुरानी स्टोरी है, जबकि एक राजकोट का एक विलेज था, वहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी. तो गांव में कौन होता है हेड? गांव के हेड जो होते हैं सरपंच होते हैं. तो जो सरपंच थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट और होशियार थे और उनको बहुत दूर की सोच थी. तो उन्होंने सोचा कि इस पानी की प्रॉब्लम को हमको हमेशा के लिए दूर करना चाहिए. At that time, he contacted the district rural development agencies and requested them to build a check dam. तो उन्होंने जो था वहाँ पे क्या किया, जो गांव होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, एजेंसीज होती हैं, ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि गांव के में जो है गांव की ज़रूरतों को पूरा करती हैं. तो उस ये जो सरपंच थे वहाँ पे उन ऑफिसर को मिले और उन्होंने एक चेक डैम बनाने के लिए कहा. In 1985, rural development agencies built 45 check dams in 1090 हेक्टेयर एरिया इन दिस विलेज. और इस विलेज में रूरल डेवलपमेंट वालों ने कितने बनाए थे चेक डैम्स? 1090 हेक्टेयर्स में जो है 45 चेक डैम्स उन्होंने बनाए. नेक्स्ट ईयर देयर वाज हेवी रेन्स इन दिस एरिया. और दूसरे साल क्या हुआ, बहुत जो है भारी बारिश हुई. सो ऑल द चेक डैम्स गॉट फिल्ड. और सारे चेक डैम्स जो है पानी की बारिश के पानी से भर गए. द लेवल ऑफ वाटर रेस्ड अप अबाउट 15 मीटर्स डीप. वाटर लेवल वॉज अवेलेबल टू द पीपल. और बहुत ज़्यादा बारिश हुई, चेक डैम्स भी बन गए, चेक डैम्स में पानी भी भर गए. तो जो ज़मीन के अंदर से जो पानी हम जैसे डिग करते हैं ट्यूबवेल या बोरवेल लगाकर, तो वो वाटर लेवल भी जो है काफ़ी ऊपर आ गया और जो है पानी लोगों को इसीलिए मिलने लगा. इन 2002 देयर वॉज अ ड्राउट. हाउएवर बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ द पीपल ऑफ दिस विलेज दे डिड नॉट हैव एनी ट्रबल. अब 2002 में क्या हुआ, वहाँ पर जो है ड्राउट हुआ, मतलब बारिश बहुत ही कम हुई, इसलिए पानी की कमी हो गई. लेकिन वो चेक डैम्स में जो पानी भरा हुआ था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कंटिन्यूस होता रहा, इस वजह से जो है वहाँ के लोगों को पानी की बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई. दैट ईयर ऑल्सो पीपल वेयर एबल टू टेक क्रॉप्स फॉर ऑल द 3 सीजन्स. और जितने भी लोग थे वहाँ पर खेती करते थे, तो सभी लोगों ने पूरे सीजन में जैसे रेगुलर 3 टाइम जो थ्री क्रॉप्स पूरे ईयर में निकालते हैं, सीजन में निकालते हैं, वैसे ही उन्होंने सारे क्रॉप्स जो है सारे सीजन में लिए. पीपल वर हैप्पी एंड वेल्दी ऑल्सो. तो लोग वहाँ पर बहुत खुश थे. तो ये लोगों की समझदारी थी. इसी तरीके से हमें भी जो है पानी को बचाना चाहिए. जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. अगर गंदा पानी है तो हमको देखना चाहिए कि हम उस गंदे पानी का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. उसको भी एकदम फेंक नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर जहाँ पे यूज़ होता हो तो उसको वो यूज़ कर सकते हैं. ये दिस इज रिसाइकलिंग ऑफ वाटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द वे वी कैन सेव वाटर ऑन द अर्थ, ऑन आवर प्लानट, एंड वी कैन ऑल्सो सेव द प्लानट. अगर हम ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो हमको नल जो है चालू नहीं रखना चाहिए. टैप को बंद कर देना चाहिए, बकेट्स फिल करिए और अपना काम करिए. टैप को कंटिन्यूसली चालू करने से देर विल बी लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर विच इज़ नॉट गुड. So we can avoid it by using the water wisely. So I hope, dear children, you have enjoyed this lesson. Bye bye and have a nice day. Now all the same things are there in the workbook also. So I'm not going to explain in the workbook. I'll be simply sending the PDF of the workbook, because whatever I explained in the textbook, the same thing is repeated in the workbook. So dear children, with this we come to the end of this lesson. Bye bye and have a nice day. Now we'll start lesson number 18 in the workbook. All of you will open your workbooks on page number 44. All of you will first write here today's date and classwork. Water from different places. The first is your MCQs. With what must be, we take water from the earthen pots with a ladle. हमको पानी किस में से निकालना चाहिए? मटके में से, with a ladle. Which of the following containers can hold the most water? It is the bucket. For which of the following task is the water not needed? पानी किसके लेने चाहिए? To make paper toys. ड्रिंकिंग के लिए भी चाहिए, वॉशिंग के लिए भी चाहिए और नहाने के लिए भी चाहिए. What is wasted more in water parks? It is the water.
When one suffers from diarrhea, vomiting, what should be mixed with water and drink? It is salt and sugar. What is the main source of water? It is the rain. Which disease does one suffer by drinking the contaminated water? It is the cholera. गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? कॉलेरा. वाटर इज अ नेचुरल वेल्थ. In big cities, chlorine gas is passed through the water to make germ free. Typhoid is a disease which spreads through water. Sachin and Neeru went to a water park with their family. A tube well is used to get groundwater from earth. We must wash our hands and feet with soap and water after using the toilet. One must drink boiled water when there is an epidemic in our area. Epidemic means कोई भी बीमारी जब अपने एरिया में फैल जाती है बहुत ज़्यादा, उसको epidemic बोलते हैं. तो कोई भी ऐसा होता है हमें पानी उबाल के पीना चाहिए. Next is your right and wrong. We must go on for a long time. We can go on for a long time without drinking water, which is wrong. A lot of water is wasted in water park, which is right. Repairing a leaking tap is a job that saves water, which is also right. Adding alum to dirty water makes the impurities settle down faster, which is correct. आलम मीन्स फटकरी पानी में डालते हैं तो क्या होता है, सारी गंदगी जो है पानी में नीचे कंटेनर में बैठ जाती है. द अर्थन पॉट इज और कंटेनर यूज टू फिल वाटर must be cleaned every day, which is also right. It is not necessary to wash hands and feet before a meal, which is wrong. Now here match the column. Clean water, colorless, odorless and clean. Contaminated water is C, which causes diarrhea and vomiting. Puddles of dirty water is A, growth of mosquitoes. मतलब गड्ढे जो होते हैं गंदे पानी के भरे रहते हैं तो उसमें क्या होता है, मॉस्किटोज और फ्लाइज पैदा होते हैं जो हमारे लिए डिजीज लाते हैं. Main source of water is rain. Now here you have to write all the different sources of purifying the water. It is filtration, boiling, adding alum to water, adding chlorine tablets, adding potassium permanganate. Chlorine tablets होती हैं, फिर एलम होता है, फिटकरी होती है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है. ये सारी चीज़ें ऐड करने से हम जो है पानी को क्लीन कर सकते हैं. इसके अलावा छानने से और बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन बोथ. वॉट शुड बी डन इन केस इन टू सेव वाटर एट होम. हमको घर में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम पानी बचा सकते हैं. एक तो जब हम ब्रश करते हैं या नहाते हैं उस वक्त जो है नल बंद करके रखना चाहिए. जितना पानी हो उतनी ही ज़रूरत पानी की यूज़ करनी चाहिए. कपड़े धोते वक्त और बर्तन धोते वक्त नल को बंद रखना चाहिए. नहाते वक्त भी हमको पहले बाल्टी भर लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें नहाना चाहिए. तो ये सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं. Moving on to page number 47 now, 46 now. Now this already we have done in the textbook. The same thing is repeated here in the workbook, so I am not explaining. Now this also question answers are there. So all these question answers we have done in the textbook. So you have to write all these question answers. That means the whole lesson you have to write it in the notebook one time. All the question answers, blanks, true and false and match, everything you have to write it in your notebook. Now this activity we are not going to do. Activity on page number 50 we are not going to do, but this activity which is on page number 51, here you have to draw and obtain a